वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज को आगे करते हुए जो नई शुरुआत चल रही है उसमें चलते हैं। जो प्रीवियस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था आपके होमवर्क का, शायद आप सभी ने सॉल्व कर लिया है। जिनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C having a charge q and area a is। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? We know electric field between the two parallel plates of the capacitor is sigma by epsilon naught. What is sigma? Surface charge density. Then option proportional to the square root of the distance between the plates, linearly proportional to the distance between the plates, independent of the distance between the plates, inversely proportional to the distance between the plates। तो अपना ऑप्शन क्या आएगा? आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू ए चार्ज inside the cube of side 0.1 meter are Ex is equal to alpha x, where alpha is equal to 500 Newton per coulomb per meter, Ex is equal to 0, Ez is equal to 0. Calculate the flux through the cube. So as is clear from figure, the flux is only along x-axis. Why? Because component of electric field along y-axis and z-axis are 0. So we calculate the flux through the cube. First we calculate the electric flux through the left face of the cube. So let us consider this is phi1. Flux is equal to electric field into area of the left side of the cube and cos theta. Here theta is 180 degree. Why? Angle between electric field and area vector on left side. So this angle is 180 degree. The value of Ex is equal to alpha x. What is the value of alpha? 500. The value of x 0.1. Why? The distance from the O to first left side 0.1 into area of the cube. You know about side of the cube 0.1, so 0.1 square into cos 180. Value of cos 180 is minus 1. After calculation, answer is minus 0.5. What is the unit of flux? Newton meter square coulomb inverse. And flux through the right side of the cube, then phi2 is equal to Ex a cos 0 degree. Why? On right side, direction of area vector and electric flux both are same, so angle between them is 0 degree. Put the value. Ex is equal to alpha x. Value of alpha is 500. X is 0.2. Why? From O to right side distance is 0.2 because this is the distance 0.1 and side of the cube 0.1. After addition 0.2. Area of the cube 0.1 whole square into cos 0 1. After solution, answer is become 1 Newton meter square coulomb inverse. What is the net flux through the cube? तो total flux क्या हो जाएगा? phi is equal to phi1 plus phi2. आप आंसर निकाल सकते हो. After solution, your answer is option B. Next question, what is the work done in moving a test charge Q through a distance of 1 centimeter along the
equatorial axis of an electric dipole. व्हाट इज द वर्क डन, आपको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है. तो यू नो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज. व्हाट इज द पोटेंशियल along the equatorial axis of the dipole? 0. So work done is also 0. Next question, electric field due to a single charge is. अब आप ऑप्शन देखोगे कि अपने पास इसमें फॉर्मूला पूछा है या ज्योमेट्रिकल शेप. तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको शेप बतानी है, एसिमेट्रिक, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक, स्फेरिकल सिमेट्रिक या नन ऑफ अबव. तो यू नो single charge, let us consider plus q. What is the electric field along this direction? When charge is positive, then direction of electric field is outward. When charge is negative, then direction is inward. So option C, spherical symmetric. Name the physical quantity whose SI unit is Newton per coulomb. Newton per coulomb. अब आपको पता है what is the SI unit of Newton? Sorry, Newton किसकी SI unit है? Force. And which quantity whose SI unit is coulomb? Charge. फोर्स अपॉन चार्ज आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अपने पास क्या जाएगा, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज्ड कंडक्टर. आपने कंडक्टर को क्या कर लिया, चार्ज कंडक्टर है. तो जो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स होती है उसके अंदर ये एक प्रॉपर्टी है कि टोटल एंटायरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस. So option C. The value of dielectric constant for metals. Metals के लिए dielectric constant infinity होता है. आप ध्यान रखें कि छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. The cause of charging is. आपसे चार्जिंग का कॉज पूछा है कि किस रीजन से आपकी चार्जिंग हो रही है. एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स. क्या आपने कभी प्रोटॉन को ट्रांसफर देखा है? एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नन ऑफ अबव. आप लोगों ने केमिकल रिएक्शंस भी देखी हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग फिनोमिना भी देखा है. आपने स्टार्टिंग से जो बेसिक साइंस है उसके अंदर पढ़ाया जाता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो बेसिक कॉज है चार्जिंग का वो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. जो आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियॉन्स ट्रांसफर नहीं होते हैं. ऑप्शन सी है आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो इस क्वेश्चन में आपसे वैल्यू पूछी है एप्सिलॉन नॉट के. नॉट के कुछ बच्चे हैं वो डायरेक्ट 9 × 10⁻⁹ देखा और इस पे टेक 9. This is the value of 1/4 pi epsilon naught. एंड सेकेंड आपको चेक करना है, यूनिट भी चेक करनी होती है. तो अपने पास एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2. द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पहले आप मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें, फील्ड डॉट एरिया वेक्टर. तो आप स्मॉल निकालते हो तो यहाँ स्मॉल हो जाता है आपके पास एरिया. व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स अपॉन चार्ज से निकाल लो, आपको याद नहीं है तो, इनटू एरिया. तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, कूलम इनटू मीटर स्क्वायर. अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इजीली. व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स? m1 l1 t-2 फॉर एरिया. एरिया का क्या होगा, l स्क्वायर
1 minute, L square upon charge A into T। तो आफ्टर सॉल्यूशन आपको लर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसका फॉर्मूला याद करें और उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट एट इन्फिनिटी? आपको क्या कैलकुलेट करना है? हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज? किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो व्हेन एट ए पॉइंट एट इन्फिनिटी, जो वो इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी पे होगा तो ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल क्या जाएगा? 0। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v, व्हाट इज फाइनल स्पीड इफ इट वाज इनिशियली एट रेस्ट? आपको पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस कि इलेक्ट्रॉन किस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट हो रहा है और क्या कैलकुलेट करवा रही है? फाइनल स्पीड। You know charge on electron is small e, and let us consider mass of the electron is small m and velocity of the electron is small v. Then kinetic energy acquired by the electron is equal to work done on it, जो इस पे work done हो रहा है उसके इक्वल होगा। What is the formula of kinetic energy? Half mv square and work done charge into potential. But what is the charge of electron? E. After calculation, v is equal to under root 2e capital V by small m. Then option C is correct answer. Next, what is the SI unit of line integral of electric field? आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालना है। अब आपको नहीं पता है कि यहाँ पर किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट आपको ऐसा यूनिट बतानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तरीके से वर्क डन मीन्स जूल अपॉन कूलम। ये आपने +1 के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है अपनी यूनिट्स। तो ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जूल अपॉन कूलम ये आपका वर्क डन अपॉन चार्ज को भी रिप्रेजेंट कर रहा मीन्स वोल्ट। तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। When a conductor is held in an electric field, the field inside the conductor is always। आप किसी भी कंडक्टर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसके अंदर से आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही है। इट मीन्स इनसाइड द कंडक्टर फील्ड ऑलवेज 0। When air in between the plate of capacitor is replaced by mica is a dielectric medium of dielectric constant 6, its capacity। जब आप किसी भी कैपेसिटर के बीच में जो प्लेट्स हैं उनके बीच में आप क्या फिल कर रहे हो? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बट ये कंप्लीटली फिल है मिका जो है। देन कैपेसिटी बिकम 6 टाइम्स मीन्स ऑप्शन सी। आपको पता होना चाहिए कि जो कैपेसिटी होगी मीडियम में वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है इन वैक्यूम से। नेक्स्ट, व्हेन 2 कैपेसिटर्स चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल, आपने 2 कैपेसिटर लिए और दोनों को डिफरेंट पोटेंशियल पे चार्ज किया एंड आफ्टर देन आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, व्हाट इज नॉट ट्रू। देखो यहाँ आपको ध्यान देना है कि एक आपसे ट्रैपिंग हो सकती है एग्जाम में। नॉट ट्रू, charge lost by one is option charge lost by one is equal to charge gained by the other. Potential lost by one is equal to potential gained by the other. Some energy is lost. Both the capacitor acquire a common potential. अपने को क्या चेक करना है? Not true. Okay. First is true. Potential lost. This is not true and some energy is lost.
This is true. Both the capacitor acquire a common potential. This is true. The option B is not true. Next question. A capacitor is charged through a potential difference 100 volt where 0.1 coulomb charge is stored in it. How much energy will it release when it is discharged? So what is the energy stored by the capacitor? Energy stored by capacitor is half Q into V. अनदर फॉर्मूले भी आप इसके यूज कर सकते हो, बट अपने इस क्वेश्चन में हमें कौन सा करना है वो आप खुद ही देख लोगे, क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज गिवन है. देन वी यूज दिस फॉर्मूला. पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द आंसर. सो क्विकली गिव द आंसर. आफ्टर सॉल्यूशन आंसर इज 5 जूल, क्योंकि एनर्जी है, जितनी एनर्जी इसमें आपकी स्टोर हो रही है, तो हाउ मच एनर्जी विल इट रिलीज, जब वो डिस्चार्ज होगा तो वही एनर्जी रिलीज होगी. नेक्स्ट, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटी ऑफ 6 म्यू फैराड इन एयर एंड 60 म्यू मीन्स माइक्रोफैराड व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड. व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा बता सकते हो? C मीडियम अपॉन C एयर. 60 माइक्रोफैराड अपॉन 6 माइक्रोफैराड. आफ्टर सॉल्यूशन आंसर इज 10. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज 10. नेक्स्ट क्वेश्चन. N small drops of same size are charged to V volt each. They collapse to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. आपके पास जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं वो कितनी है? N. अब हम कंसिडर करते हैं. लेट अस कंसिडर स्मॉल r be the radius of each small drop and capital R be the radius of bigger drop. Then volume of स्मॉल ड्रॉप्स और कितनी है अपने पास? n. तो n से मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप. एंड आफ्टर कैलकुलेशन n इंटू 4/3, क्योंकि अपने पास जो ड्रॉप्स हैं वो स्फेरिकल शेप में है. देन वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब. दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू n पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड. तो अब अपने को क्या निकालना है? पोटेंशियल. तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप जो होगा उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? बिगर का पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय कैपेसिटी. टोटल चार्ज बाय कैपेसिटी. अब टोटल चार्ज कितना है आप कंसीडर कर लो, क्योंकि सेम साइज है, सेम पोटेंशियल दिया है, तो उन पर चार्ज स्टोर भी सेम रहेगा. Q इंटू एन बाई कैपेसिटी. कैपेसिटी कैसे निकालोगे? जो स्फेरिकल शेप होती है उसकी कैपेसिटी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस. तो आफ्टर कैलकुलेशन आप कैपिटल R की वैल्यू पुट करें अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन पावर 1/3 R. सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन पावर 2/3 इंटू R. 2/3 कैसे आया आपके पास? ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी आपके नॉमिनेटर में जाके. इट मीन्स जो आपके पास R डिवाइडेशन में है, जो इनिशियली पोटेंशियल था उसका n पावर 2/3 टाइम्स पोटेंशियल हो जाएगा. तो ऑप्शन चूज करें. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is charged with a battery of EMF V volt
A dielectric slab of dielectric constant capital K is placed between the plates of fully occupy the space. The battery remains connected. आपने बैटरी को कनेक्टेड रखा है और जो आपकी प्लेट्स हैं उनको फुली ऑक्यूपाई कर दिया, किससे? विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस? तो न्यू कैपेसिटेंस सी डैश है, इसका रिलेशन बताओ. तो अपने पास जो सी डैश होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका कांस्टेंट इनटू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर when no any medium filled with the plates, then option A is correct answer. Next question, based on this, the new electric field, new potential and new electric potential energy are related to their previous values. अपने को एक चीज इजीली हम इसमें देख सकते हैं कि जो प्रीवियस था अपना क्वेश्चन कि बैटरी क्या इसमें कनेक्टेड है. जो बैटरी कनेक्टेड होगी तो अपने को एक क्वेश्चन माइंड में रखना है कि आपका पोटेंशियल सेम रहेगा, नो चेंज. वाई? बैटरी कनेक्टेड है. और आप देखो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि बैटरी कनेक्टेड है, देन पोटेंशियल सेम. अब अपने पास सेकंड करेक्ट है. नेक्स्ट अपने को थर्ड पॉइंट चेक करो, पोटेंशियल एनर्जी. अब आपका पोटेंशियल सेम है और जब आप उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया था तो कैपेसिटी इंक्रीज हो गई थी. देन एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर विच कांस्टेंट C इंक्रीज. तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो भी क्या हो जाएगी? K टाइम्स हो जाएगी इनिशियल के. मीन्स थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. बट जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिक्रीज होगा. और वो डिक्रीज क्यों होगा उसके पीछे रीजन है कि जब अपने पास क्योंकि फोर्स आपको एक्सपीरियंस होगा, फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स. जब मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो डिक्रीज होगा. देन फील्ड इंटेंसिटी ऑल्सो डिक्रीजेज. देन ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, a parallel plate capacitor of capacitance C charged with a battery of EMF V volt dielectric slab of dielectric constant K is placed between the plates of fully occupy the space. The battery remains disconnected. आपको इस क्वेश्चन में क्या है? बैटरी डिसकनेक्टेड है. तो व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस? न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यू पोटेंशियल एंड न्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस. तो दिस इज योर होमवर्क. नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे. आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे.